تو ایپیسوڈ 6 پہ ہم آ گئے. آپ لوگ بہت ریکویسٹ کرتے رہتے یوسف سیریز دیکھو، لیکن آپ لوگ ویڈیو کو لائک نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو لائک کیا کرو تاکہ ہم اور لوگوں تک پہنچو، لوگ تک دیکھیں. ٹھیک ہے، تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں. سٹارٹ. پھپھو بیمار ہے. یوسف خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے. بعض لوگوں کے لیے رحمت و نعمت ہے تو بعض کے لیے نقصان اور خسارہ ہے. مجھے حسد اور کینے کے آثار نظر آ رہے ہیں. یوسف کا خیال رکھنا. وہ سلسلہ نبوت کی ایک کڑی ہے. اسے تنہا مت چھوڑنا. لمحہ بھر کے لیے بھی اسے اپنے ساتھ سلانا اور اکیلے کہیں فائقہ سفر بخیر میری بہن. سفر بخیر. میرا سلام ماں اور بابا اسحاق کو پہنچانا. میرا سلام راہیل کو دینا. میرا سلام ہمارے دادا ابراہیم کو پہنچانا. کسی سے لو مت لگانا، صرف اس کی پناہ میں رہو. جو کچھ مانگنا ہے صرف اس سے مانگو کہ سب عاجز ہیں اور وہ قادر. وہ تمہارے ہر راز و نیاز سے باخبر ہے اور تمہارے تمام وجود پر صرف وہی حاضر ناظر و گواہ ہے. اور اگر دوست چاہتے ہو تو تمہارا دوست ہے. محافظ و نگہبان چاہتے ہو تو وہ تمہارا نگہبان ہے. اگر منم چاہتے ہو تو وہ تمہارا منم و پروردگار ہے. اگر پند و نصیحت چاہتے ہو تو تمہارا ناصح اور واعظ ہے. جو کچھ تم بندوں سے طلب کرتے ہو وہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہے. وائے ہو ان پر جو دوسروں کے سامنے دست اسمال دراز کرتے ہیں. اکثر مخلوق رسوا ہو جائے اگر خدا روز محشر صرف عادل بن کر فیصلہ کرے. بہت سے پردے فاش ہو جائیں گے اگر وہ اپنی مخلوق پر عادلانہ نظر کرے. بہت سے امیر اسیر ہو جائیں اگر کل حق تعالی مظلوموں کی دستگیری فرما دے.
آنکھیں خون کے آنسو روئے. اگر گناہگار اپنی بدعمالیوں کا مشاہدہ کر لے، لہذا اس دن کے لیے ذات آخرت جمع کرے اور اس روز کے لیے اپنے اعمال کی اصلاح کرے. فائقہ کی طرح سب خود کو تیار رکھے. بالآخر ہم سب اسی راہ کے مسافر ہیں. آئیے فائقہ کی روح کے لیے مل کر دعائیں مغفرت کریں. پروردگار، اسے اپنے صالح اور نیک بندوں کے ساتھ مشہور فرما. آمین. ظالموں، اسے چھوڑ دو. پھر سے بھیڑی والا سب. چھوڑ دو اسے. برہمو، اسے چھوڑ دو. درندہ صفتوں، اسے چھوڑ دو. وحشیوں، اسے چھوڑ دو. چھوڑ دو. اپنا خیال کرو. احتیاط کرو. اپنا خیال کرو. احتیاط سے. اس کا پیچھے چھوڑ دو. بابا بابا چھوڑ دو اسے. اسے چھوڑ دو. جناب یعقوب، اٹھیے، اٹھ جائیے جناب یعقوب. کیا ہوا یا نبی خدا؟ لگتا ہے خواب دیکھ رہے تھے. آپ کی آواز کمرے تک آ رہی تھی. بڑا بھیانک خواب تھا. چند بھیڑیے ایک بچے کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. انہوں نے بچے کو زمین کے گڑھے میں گرا دیا تھا اور اسے چیر پھاڑ ڈالنا چاہتے تھے. وہ بچہ کون تھا؟ اسے نہیں پہچانا؟ دور تھا، اس کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن تقریباً یوسف جیسا قد و قامت کا تھا. نبی خدا ضرور خواب کی تعبیر جانتے ہیں، ورنہ اتنے پریشان نہ ہوتے. خاندان یعقوب کو بلا و مصیبتوں کا سامنا ہے. خدا اپنے کسی بندے کی برائی نہیں چاہتا ہے. یہ بندے ہیں جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی راہ میں جال بچھاتے ہیں. سونے سے کچھ سکون مل جائے گا. بہتر ہے آپ کچھ دیر آرام کر لیں.
خدایا میں تیری پناہ مانگتا ہوں. تعجب ہے. جات، اشیر، تم نے کل رات کوئی آواز نہیں سنی؟ نہیں، ہم تو سو رہے تھے، ہم نے کوئی آواز نہیں سنی. میں ایک لمحے کو رات کو اٹھا تو تھا لیکن کچھ سنا نہیں. کل تمہارے باپ کی آواز سے میری آنکھ کھلی، خواب دیکھ رہے تھے. میں نے اٹھایا تو بتایا کہ خواب میں 10 بھیڑیے دیکھے جنہوں نے ایک بچے پر جو یوسف کی قد و قامت کا تھا حملہ کیا اور اسے گڑھے میں گرا دیا. آدھی رات کو اٹھ کر یوسف کو پیار کر رہے تھے اور اسے چوم رہے تھے. بابا نے اس بچے کو پہچانا نہیں؟ کہہ رہے تھے کہ میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا، لیکن ظاہر ہے کہ یوسف ہی تھا، ورنہ وہ بیدار ہوتے ہی اس کے سر پر ہاتھ نہ پھیرتے اور لاڈ نہ کرتے اس سے. اگر وہ بچہ یوسف تھا تو یقیناً وہ بھیڑیے ہم 10 بھائی ہوں گے. بڑے فخر کی بات ہے نا کہ تمہارا باپ تمہیں بھیڑیے کی شکل میں دیکھے. یعقوب کہہ رہے تھے کہ خواب میں 10 بھیڑیوں کو دیکھا جس نے ایک بچے پر جو یوسف کی شکل کا تھا حملہ کیا اور اسے زمین کے گڑھے میں گرا دیا. یہ کوئی برا خواب تو نہیں ہے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے بلہا؟ یعقوب نے ہمارے بیٹوں کو بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے. تم اس خواب کو اچھا سمجھتی ہو؟ جو بھیڑیے یوسف پر حملہ کریں وہ برے بھیڑیے تو نہیں ہوئے نا. کتنا جلدی بچوں کو خود ہی کچھ کرنا ہوگا، برائی سے بچوں کو ہی. شک ہو رہا ہے. آدھی سو گئی. آدھی سو گئی. معاملہ کیا ہے؟ میں سب سمجھ رہا ہوں. راتوں کو بھی یوسف کی فکر میں ہے، خواب میں بھی یوسف ہی نظر آتا ہے. جہاں کہیں جاتے ہیں اسے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں، سوتے ہیں تو اپنے پہلو میں سلاتے ہیں. فضول میں ہنگامہ مت کرو یہودا، ہمیں تو ابھی یہ بھی نہیں پتا کہ بابا نے حقیقتاً کیا خواب دیکھا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف کے پاس ہماری طرح ماں اور مکان وغیرہ نہیں ہے، بالکل. لہٰذا بابا مجبور ہیں کہ ہر جگہ اسے اپنے ساتھ رکھیں. ہمیں پتا ہے کہ بابا نے کیا خواب دیکھا ہے. انہوں نے ہمیں خواب میں بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے، وہ بھیڑیے جو یوسف کو مارنا چاہتے تھے. اپنے کریکٹر کو صاف کرنا. سلام بابا. تم لوگوں کو زیب نہیں دیتا کہ جو کوئی کچھ بھی کہہ دے اسے سنا اور آسمان سر پر اٹھانا شروع کر دیا. ماں کہہ رہی تھی کہ آپ نے ہمیں خواب میں بھیڑیوں کی شکل میں دیکھا ہے جو یوسف پر حملہ کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے، میں نے خواب میں صرف یہ دیکھا کہ چند بھیڑیوں نے ایک بچے پر حملہ کر دیا ہے. نہ وہ بھیڑیے تم لوگوں کی شکل کے تھے اور نہ ہی وہ بچہ یوسف کی شکل کا، کیونکہ میں نے خواب میں بچے کا چہرہ واضح نہیں دیکھا. 10 بھیڑیے، ظاہر ہے کہ ہم 10 بھائی ہیں. میں نے خواب میں بھیڑیوں کی تعداد نہیں گنی. تم لوگوں کو کس نے کہا کہ 10 بھیڑیے تھے؟ اپنے اوپر پہلے ہی شک ہے.
मैं तुम सबको चाहता हूं। तुम लोगों की ज़हमतों की हमेशा दिल से कदरदानी की है, लेकिन मैं यहूदा को, जो अब एक कवि हैकल जवान है, बच्चे की तरह जानू पर बिठाकर तो लाड प्यार करने से रहा हाँ वो बड़े कर हो गए सकता तो हूं। मैं तो गोदी में थोड़ा ना खिलाऊंगा तुम लोगों को, यूसुफ को ही जब खिलाऊंगा। तुम लोग छोटे थे तो तुम्हें भी बच्चों की तरह प्यार किया करता था, अब और कंधों पे अपनी ढाल जानू ना पर घुमाऊं। बिठाता था और अपने पहलू में सुलाता था। बिल्कुल। तुम लोगों ने उस वक्त बाप की शफकत भी पाई और माँ की मोहब्बत भी। उसके पास यूसुफ और उसके भाई को जितनी भी मोहब्बत मिले वो उस मोहब्बत के मुकाबले में कम है जो तुम लोगों को मिली। तुम लोगों से जो इस वक्त जवान हो, मुझे ये हरगिज तवक्को न थी कि एक बच्चे से अपना मुकाबला करोगे। जात, अशीर, अपनी माँ से पूछो कल रात में किस तरह तुम लोगों को प्यार कर रहा था। हाँ, मैं कल रात जाग रहा था, आपने हमें चादर उड़ाई और हमारे सर पर हाथ फेरा। पहले भी मैंने तुम लोगों से कहा था कि तुम्हारे गुफ्तार और अफकार से हसद झलक रहा है। ये शैतानी अफकार हैं। दुश्मनों और बदखाहों को मौका ना दो कि वो आपके अंदर हसद की आग को मजीद भड़काएं। पूरे पापा, शैतान भड़का रहा है, हम तुमको चाहते जला हैं कि रहा है, तुम यूसुफ के जलो साथ मत। खेलें। आप हमें इजाजत क्यों नहीं देते? वो तुम्हारा भाई है, मुझे कोई एतराज नहीं है। उसके साथ क्यों नहीं खेल सकते? मुझे यकीन है कि वो भी तुम्हारे साथ खेलकर खुश होगा। तो क्या हम अभी यूसुफ के साथ खेल सकते हैं? पूछने की क्या बात है, जाओ खेलो। तुम लोग भेड़ों को चरागाह नहीं ले जाओगे? हमें माफ कर दीजिए बाबा। सबसे सही अंतर्वाद। इनका वो पता है, यही है, माई है बिगाड़ रही है। शिकारी है। ये कौन है? वाह वाह वाह, क्या मेहनती और गबरू जवान। ये क्या शैतान है, बात है, शैतान। क्या कर रहे हो? दोपहर के खाने के लिए दूध गर्म कर रहे हैं। नौशे जान, बिन बुलाया मेहमान नहीं चाहिए क्या? आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसी देहात का रहने वाला हूँ। मेरा काम गल्लाबानी नहीं है, बस कभी कभार अपनी भेड़ें यहाँ चराने को लाता हूँ। लगता है कि तुम लोगों को मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा। लगना चाहिए क्या? हक बजानिब हो, किसी अजनबी की आमद पर कोई खुशी नहीं हुई, लेकिन हकीकत यह है कि मैं तुम लोगों की खातिर यहाँ आया हूँ। तुम लोगों के दीदार का बड़ी शिद्दत से मुश्ताक था। क्या आप हमें जानते हैं? हाँ, यहाँ अतराफ के तमाम लोग ही याकूब पैगंबर के बेटों को जानते हैं। तो हमें देख के ताज्जुब क्यों हुआ? क्योंकि मैंने कल रात आप लोगों को ख्वाब में देखा था। आपको यकीन आएगा? हाँ, कल रात आपको ख्वाब में देखा और आज जागते हुए देख रहा हूँ। ये अजीब नहीं? हम सुनना चाहेंगे, हमें बताओ क्या देखा। सच पूछो तो अजीब गरीब ख्वाब था, मैं कुछ समझ नहीं पाया। मैंने ख्वाब में देखा कि आप 10 भाई हैं और एक बच्चे को तख्त पर उठाए हुए हैं।
जैसे आप सब गुलाम हो उसके और वो आपका आका हो। कभी देखता कि वही बच्चा एक सवारी पर सवार और आप 10 अफराद घोड़ों की मानंद उसकी गाड़ी पर जुटे हुए हैं। कभी देखता कि वो कुर्सी पर बैठा है और आप 10 को जंजीर में जकड़ा हुआ है और आप लोग उसके लिए गल्लाबानी और काश्तकारी कर रहे हैं। मेरा ख्याल है मैंने ख्वाब बताकर आप सबको परेशान कर दिया है, लेकिन ऐसी कोई खास बात नहीं है, उसे अहमियत न दे। बेहतर है कि अब मैं जाऊं। अजीब बदसूरत और खबीस शक्ल का था। हाँ, अरे कहाँ चला गया? इतनी जल्दी यहां से दूर नहीं जा सकता। वो गायब हो गया। शायद उससे जमीन निकल गई। पता नहीं वो कौन था, लेकिन उसकी बातों ने मुझे सोच में डाल दिया है। उसका ख्वाब यूसुफ के ख्वाब की तरह था। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम बाबा। सलाम। सलाम बाबा। सलाम मेरे बच्चों, सलाम। सलाम जीते बाबा। रहो। नबी खुदा पर दरूद। तुम पर भी खुदा का दुरूद हो बेटा। क्या हुआ? लगता है किसी से झगड़ा हुआ है। जी, आपके बेटों से। लेकिन क्यों? उन्होंने हमारे खेत को खराब कर दिया। वो अपनी भेड़ें चराई। मैंने एतराज किया तो मुझे मारने लगे। यहूदा, शमून, लावी, इधर आओ। तुमने भेड़ों को इस जवान का खेत खराब करने क्यों दिया? भेड़ों को रोका तो नहीं जा सकता ना बाबा। अब ऐसा भी क्या हो गया? और इसे मारा क्यों? इसका कसास अदा कर सकोगे? या नबी अल्लाह, मैंने इन्हें माफ किया, लेकिन इनसे कहिए कि आइंदा अपनी भेड़ों को चराने के लिए हमारे खेतों में ना लाएं। ये कहते हैं कि हम कनान के मालिक और मुख्तार हैं, जो चाहें करेंगे और जहां चाहें भेड़ें चराएंगे। ये बताओ कि तुम्हें किसने हक दिया है कि लोगों के खेतों में अपनी भेड़ें चराओ? तुमसे किसने कह दिया है कि कनान के मालिक मुख्तार हम हैं? बेटा, मैं तुमसे माफी चाहता हूं। वादा करता हूं कि आइंदा हमारे जानवर तुम्हारे खेत को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। मैं खुद तुम्हारे सारे नुकसान की अदायगी करूंगा। हमसे गलती हो गई बाबा, माजरत चाहते हैं। कनान में हर शख्स अपनी मिल्कियत का खुद मालिक व मुख्तार है। कनान के असली मालिक फलस्तीनी हैं, हम नहीं। फिर हम कहाँ के हैं बाबा? जहां के मेरे दादा और तुम्हारे जद इब्राहिम खलील रहमान, जिनका मकबरा मकफीला में है, वो बैनुल नहरीन के जुनूबी हिस्से सुमर कला के खित्ते ऊर के रहने वाले थे। वही तुम लोगों की जाय पैदाइश है। फद्दान के नजदीक इनसे पहले फलस्तीनी यहां रहा करते थे। इस जवान के आबाओ अजदाद जो कि फलस्तीनी थे, हमसे सैकड़ों साल पहले से कनान में आबाद हैं। अलबत्ता 100 साल बाद हम सब इब्रानी और कनानी अहले कनानी कहलाए जाते हैं। तुम सबको चाहिए कि एक दूसरे के दोस्त बनकर रहो।
यूसुफ, यूसुफ मेरे बच्चे, उठो, उठो। सलाम बाबा। सलाम बाबा की जान। लगता है ख्वाब देख रहे थे। जी, ऐसा जिसको किसी से भी बयान करने को मना किया है। अपने बाबा से भी? देखा कि मैं भेड़ों के पास बैठा था। إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. واو. نفس نوری داره. یخسران. जब यूसुफ ने अपने वालिद से कहा, बाबा जान, मैंने ख्वाब में देखा 11 सितारे, सूरज और चांद हैं। देखता क्या हूं कि वो मुझे सजदा कर रहे हैं। ये उसके भाई और माँ बाप सजदा कर रहे हैं। मैं महव था सितारों और सूरज और चांद को देखने में कि आपने बेदार कर दिया। वाह, समझ गए, वो समझ गए। ये बताने वाली बात नहीं है, किसी को नजर लग जाएगी। ऐसे गद्दी पे बैठाकर ताज बनाया। पहले के सपने हकीकत हो जाए करते थे, जो देख रहे हो वही सच्चाई है। नहीं, नबी है ना, नबियों को अल्लाह जो है वो सपने के जरिए पैगाम देते थे। तुम्हारा ख्याल सही था मेरे बच्चे। उस ख्वाब को किसी से बयान मत करना, खुसूसन अपने भाइयों को। नादान है और उनकी जवानी का जोम उन्हें हसद में मुब्तला कर देगा। अपनी बहन और सौतेली माँ को भी मत बताना, वो सबको बता देंगी। सूरज जो एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होगा, इस वक्त तुम्हारे सामने दोसानो है। और चांद और 11 सितारे भी एक दिन तुम्हारे सामने सजदा रेज होंगे। तुम एक दिन बुलंद मर्तबा पाओगे, मकाम मंजिलत के लिहाज से भी और मानवी दर्जात के लिहाज से भी। उस दिन तुम्हारा बाप, माँ और तुम्हारे सारे भाई तुम्हारे सामने सजदा करेंगे। लेकिन उस दिन तक इस ख्वाब को किसी से भी बयान करने से परहेज करना, खुसूसन अपने भाइयों से।
मुमकिन है वो तुमसे हसद करने लगे और तुम्हारे खिलाफ साजिश करे। साजिश? और वो भी मेरे अपने भाई, नबी खुदा के बेटे? शैतान की कुव्वत से गफलत मत बरतो बेटा। शैतान इंसानों का खुला दुश्मन है और उन्हें फरेब देता है, ख्वाह अंबिया के ही बेटे क्यों ना हो। खुदा ने तुम्हें अपने लिए चुना है और ताबीर ख्वाब का इल्म कसीर तुम्हें अता करेगा और तुम पर और खानदान याकूब पर अपनी नेमतों को तमाम करेगा, जिस तरह तुम्हारे बाप दादा इसहाक और इब्राहिम पर इत्माम नेमत किया था और उन्हें इमामत व विलायत का मर्तबा अता किया। दिल में बेईमान ना है। खुदा तुम्हारी रूह को शाद रखे। तुम्हारे बच्चों को लाया हूं, देख रही हो, दोनों सही और सालिम और खुश हैं। माँ, फायका फुप्पो भी हमें छोड़कर चली गई। उस रोज से ये भाई तुम्हारी भाई जुदाई है, का भाई एहसास और सगा ज्यादा भाई। हो गया। इसी जैसा सुंदर प्यारा था, इतना सुंदर मैं जानता हूं कि यूसुफ और बिन्यामीन के लिए कोई भी तुम्हारी जगह को पूर्ण नहीं कर सकता, लेकिन मैं और लिया अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि इन दोनों को मां की कमी का एहसास न हो। बाबा, क्या मैं माँ को अपना ख्वाब बता दूं? तुम्हारे लिए खुशखबरी है राहिल, हमारा बेटा मुस्तकबिल में मकाम नबूवत पर फायज होगा। ये मुझे इसके कल रात के ख्वाब से पता चला। माँ, लिया खाला और बाबा हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, हमारे लिए परेशान मत होना। आराम से सोती रहो राहिल, आराम से सोती रहो। मैं अपने बच्चों को मां की कमी महसूस नहीं होने दूंगा। इसको कहते हैं चिराग तले अंधेरा है, कि वो उनके पापा खुद नबी है और उनकी बीवी जो 2 बीवियां हैं वो कैसी है, वो बच्चे कैसे हैं, समझ ही वो शैतान देखो कैसे भटकाते, ऐसे भटकाते। तो ये शैतान उनको भटकाने ही तो आया था, जलन पैदा करने आया था। वो तो पहले ही जले हुए हैं, वो तो पहले ही इतने होशियार हैं। तो कैसे सपने में दिखाई दिया कि भाई यूसुफ को कैसे सपने में दिखाई दिया कि भाई मेरे ऊपर ताज पहना रहे हैं। तो उसके उसके पापा तो पहले ही डरते थे कि ये ख्वाब कोई और ना सुन ले। उन्होंने देखा भी भाई कोई सुन तो नहीं रहा, लेकिन उनकी सौतेली माँ ने जब ये ख्वाब सुन लिया तो उनके मन में क्या क्या आया होगा, क्या विचार आएगा। फिर अपने बेटों पे नजर डाली। अब देखते हैं उनके बेटों अपने बेटों को ख्वाब बताएगी। अब यूसुफ की कितनी मुसीबतें और बढ़ने वाली है। छोटा सा बच्चा, इतनी प्यारी जान है और दुश्मन इतने बने पड़े हैं। तो छोटा भाई भी कितना प्यारा मासूम है। अब देखते हैं बच्चों पे क्या सितम होता है। तो वीडियो बहुत अच्छी थी वीडियो, और है ना वीडियो देखते देखते
مجھے پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا چل رہا ہے کیا نہیں. ایسا لگتا ہے ریئل میں ہو رہا ہے سب اور میں بیٹھ کے دیکھ رہی ہوں. اچھا ایک بات پوچھنی تھی، کیا اس زمانے میں خواب حقیقت ہوتے تھے کہ جو خواب دیکھ لو وہ ہو جاتا تھا؟ آج تو ایسا نہیں ہے، خواب میں پتہ نہیں کیا کیا دیکھ لیتے ہیں. نبیوں کو ہی اللہ دکھاتے تھے. اچھا ہاں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. ٹھیک ہے، سبسکرائب کرنا، لائک کرنا. بائے.